Good evening, everyone. Welcome to another session on most advanced topics for NSEJS biology. And this is your NSEJS biology master teacher, Akshansh. So, guys, in the last session, we had covered a single topic that was mutations. Mutations में भी हमने ये पढ़ा था कि the mutations are of three types. First is the genomic mutation. Second is the chromosomal aberrations or chromosomal mutations. And the third was the gene mutations. हमने बेटा लास्ट सेशन में जीनोमिक म्यूटेशंस को एकदम डेप्थ में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि पॉलीप्लॉइड्स होते हैं एंड वी आल्सो हैव द एनिप्लॉइड्स. वो कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द एसोसिएटेड एग्जांपल्स, हमने सब कुछ डेप्थ में पढ़ा था. तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज चेक द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशंस, दैट इज द क्रोमोसोमल एब्रेशंस. सो क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं गाइस? क्रोमोसोमल एब्रेशन बेसिकली रिफर्स to any abnormal changes or alterations in the structure of the chromosome. When there are any abnormal changes or alterations in the structure of the chromosome, basically, that is referred as a chromosomal aberration. Chromosomal aberration में, for example, जैसे कि अगर हम कहें कि हमारी क्रोमोसोम का एक पार्ट लॉस हो चुका है, तो उस पार्ट से एसोसिएटेड जितने भी जीन्स होंगे, they will also get lost. बिकॉज बेटा आप में कुछ पर्टिकुलर जीन्स डिलीट हो चुके हैं, सो इट विल लीड टू सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट? अगर हम कहें कि कुछ न्यू पार्ट्स अपीयर भी होते हैं, इट विल आल्सो लीड टू सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज एब्रेशंस. नाउ chromosomal aberrations are of two types. First is the interchromosomal aberration and the second type is the intrachromosomal aberrations. तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं. First is the intrachromosomal aberrations. What are intrachromosomal aberrations? So when the changes in structures occur within the same chromosome, it is known as intrachromosomal aberration. Example के तौर पे हमने एक homologous pair of chromosomes उठाया. Suppose करो उसका जीन सीक्वेंस है ABCD EF by ABCD EF. Guys, we are saying it is a homologous pair, इसलिए मैंने इसे दो बार लिखा है. It is a pair, homologous pair of chromosomes. So the first type of intrachromosomal aberration can be deficiency. It can be deficiency. Deficiency का मतलब क्या है? Deficiency का मतलब आप समझते हो कि something is in deficit, कुछ कम है, right? So इसमें क्या होता है बेटा? There will be loss in the terminal segment of the chromosome. आपके particular chromosome का terminal segment missing होगा. मतलब the sequence will look something like this: ABCD by ABCD EF. तो बेटा ये आपके जो आपका EF था, that was the terminal sequence, terminal gene sequence of one chromosome, and that is missing. So EF is missing. Okay. Now comes the second type, that is deletion. Deletion में क्या होगा? So there will be intercalary loss of the segment of the chromosome. The sequence will become AB. Let's suppose CD is missing. Intercalary मतलब कि बीच का कहीं. हमने कहा चलो इस बार इसके संग नहीं खेल करते, हम दूसरे वाले के संग खेल लेते हैं. तो CDEF. This one is the normal chromosome, but the next one जो था उसमें बेटा बीच का गायब हो गया. Suppose करो CD got deleted, so EF. So what is happening? CD is missing. Very important. Now the third type, that is the inversion. What happens in inversion? The name is suggesting itself. The gene sequence will get inverted. So suppose करो हमारे जो AB was such that CD got inverted, so it will become EDC. F by ABCDEF. Okay, and here inversion has happened. Inversion of CDE. Okay, so it had got become EDC. Okay, I hope the intrachromosomal aberrations are clear to all of you. Now, interchromosomal aberrations क्या होता है? So when the structural changes occur between two chromosomes, yeah, two non-homologous chromosomes, those aberrations are referred as interchromosomal aberrations. कहने का क्या मतलब है बेटा? हम लेंगे दो non-homologous chromosomes. Suppose करो हमने कहा पहला था ABCD EF and the next one was PQRSTU. ओके, अब ये आपके दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम है. मतलब हो सकता है कि पहला वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम नंबर 2. अलग अलग है. या इट कैन बी 1, इट कैन बी 10, इट कैन बी 2, इट कैन बी 24. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 24 क्रोमोसोम्स है तो ठीक है. आई एम नॉट
टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस। ठीक है, तो पहला टाइप हो सकता है बेटा डुप्लीकेशन। नाउ डुप्लीकेशन बेटा क्या होगा? सो डुप्लीकेशन जो है इट कैन इधर बी इंट्रा क्रोमोसोमल और इट कैन बी इंटर क्रोमोसोमल एज वेल। डुप्लीकेशन इंट्रा भी हो सकता है, इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, हमने कहा चलो बेटा सीडी जो है इट इज गेटिंग डुप्लीकेटेड। सो ये दो तरीके से डुप्लीकेट हो सकता है, या तो ये सीडी बेटा इसी क्रोमोसोम में रहे तो ए बी सी डी देन यू हैव ई एफ, और ये हो सकता है जो सीडी है ये डुप्लीकेट हुआ एंड इट अपीयर्ड इन द another non-homologous chromosome. So it became PQRS CD PU. Okay, so this is duplication. So जब ये बेटा within the same हो रहा था, this was the intrachromosomal का, and CD when it got added to another non-homologous chromosome, it will be interchromosomal. ठीक है, तो one question can come from this part कि बताओ कौन सा ऐसा aberration है which can also be considered as intra and interchromosomal aberration. ठीक है, so the answer is going to be duplication. Now the second type is translocation. Translocation बेटा ट्रांसलोकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स? सिंपल ट्रांसलोकेशन में बेटा आपका एक पार्ट में आपके एक क्रोमोसोम में या तो डिलीशन होगा या तो डिफिशियंसी होगी, and that lost part will appear in some other chromosome, some other non-homologous chromosome. Suppose करो यहाँ से मेरा EF गायब हुआ, ठीक है, सिंपल में क्या हुआ, हम इन्हीं दोनों को लेके चल रहे, तो सपोज करो मेरा EF गायब हुआ and it appeared in the another non-homologous chromosome, so the sequence became A B C D, EF has got deleted and it appeared in the next one P Q R S T U E F. ठीक है, this is the simple translocation. Reciprocal में क्या होता है, there will be exchange. तो एक्सचेंज में क्या हो सकता है बेटा, जैसे हमने कहा ई एफ जो है इट हैज गॉट एक्सचेंज, तो इट बिकेम ए बी सी डी टी यू एंड पी क्यू आर एस ई एफ। तो बेटा टी यू और ई एफ जो है दे हैव गॉट एक्सचेंज विद वन अनदर, तो दिस इज ट्रांसलोकेशन। आई होप द इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशंस आर क्लियर टू यू। ये यहाँ से क्वेश्चन बेटा आ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द जीन म्यूटेशंस। तो बेटा अगर आपको पता हो तो हमारा जो डीएनए है इट कंटेन्स 4 नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। आपका डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, आरएनए का क्या स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स में बेटा मैंने वीडियो को लिया था। मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड दोस वीडियोस। सो जीन म्यूटेशंस के लिए हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। अब बेटा हमें एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि जो हमारा डीएनए होता है बेटा उससे बनता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, एंड mRNA is further translated by ribosome, जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो बेटा जो प्रोटीन बनेगा उसका जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द डीएनए। अगर आप डीएनए को बदल दोगे तो आपका mRNA बदल जाएगा, mRNA बदल जाएगा तो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस भी बदल जाएगा। तो जीन म्यूटेशंस में व्हाट हैपेंस कि हमारे किसी पर्टिकुलर जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या है बेटा यहाँ पे, चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड sequence of the particular gene. क्लियर? तो जैसे सपोज करो मैंने एक सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस आपके बेटे नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में ही होगा। सपोज इट वाज ए जी सी टी 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 सी जी ए सी टी सो ऑन। ठीक है, अब ए यू जी और जोड़ देते हैं इसका। ठीक है, सो गाइस सपोज करो दिस इज अ सीक्वेंस दैट आई हैव रिटन। तो बेटा हमेशा हम हर एक सीक्वेंस को ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में पढ़ते हैं। सो दिस AUG विल एक्चुअली कोड फॉर मेथियोनिन व्हिच इज एन अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये आपका मेथियोनिन को कोड करेगा। ओके, सो AUG will code for methionine. Similarly, AGC will code for another amino acid. Triple T will code for another. CGA will code for another. ठीक है, CTC will code for some other amino acid. ये चीज बेटा हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब ये चीजें हम पढ़ते हैं। बस आपको ये समझ में होना चाहिए, अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे ये पहचानना है कि मेरी डीएनए की कौन से पार्ट से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो आप उसे ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट आप बना लो। जैसे AUG इज वन ट्रिपलेट, AGC इज अनदर ट्रिपलेट। ठीक है, सो अब एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट से एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। सो बेटा अगर मैं सीक्वेंस बदल दूंगा, सपोज करो जी की जगह मैंने कुछ और ही डाल दिया, जी की जगह मैंने क्या किया, तो सपोज करो मैंने जी की जगह आई हैव इंसर्टेड ए, so it will become AAC. Okay, so
जब बेटा ये आपका AAC हो गया, सो नाउ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, आपके ये AAC से कोई दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, इनिशियली इट वाज कमिंग फ्रॉम AGC, स्टार्टिंग में आपका कोई और अमाइनो एसिड था, अभी कोई और अमाइनो एसिड है, देयर इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड व्हिच विल लीड टू चेंजेस इन द प्रोटीन। ओके, सो आपका अगर प्रोटीन में चेंज आएगा तो प्रोटीन से एसोसिएटेड जो पाथवे है बेटा उसमें डिस्ट्रप्शन आएंगे एंड दैट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मिटी और सम सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर। ओके, सो जीन म्यूटेशंस जो होते हैं बेटा, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द पॉइंट म्यूटेशन, then you have the gross mutation, and then you have the copy error mutations. Guys, please remember this कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज है तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। जब आपके मल्टीपल पॉइंट्स पे चेंजेस हैं इट विल बी अ ग्रॉस म्यूटेशन। एंड बेटा जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एज सच तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, बट कभी कभी क्या कर रहा है व्हेन इट वर्क्स तो वो कहीं कहीं सीक्वेंस में किसी और बेस पेयर की जगह कोई किसी और नाइट्रोजन बेस की जगह कोई और नाइट्रोजन बेस को इंसर्ट कर देता है ना। बेचारे एंजाइम ही तो कितना काम करेगा। नाउ लाइक द एंजाइम इज डीलिंग विद मिलियंस ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ओके, नाइट्रोजन बेसिस के साथ वो डील कर रहे हैं तो एक आध गलती तो बनती है। सो when there are errors when the errors happen during the replication of DNA, that is referred as copy error mutation. Okay, so I hope इतना तो आपको समझ में आ चुका है। अभी बेटा ये तो आपको मैंने बताया ऑन द बेसिस कि किस तरीके से म्यूटेशन हुआ, कितने स्पॉट्स पे म्यूटेशन हुआ। अब ये म्यूटेशन होता कैसे है। सो ये जो आपके म्यूटेशंस हैं ये आपके बेटा किस तरीके से हो सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइप लाइक द फर्स्ट मेथड जिससे आपका म्यूटेशन हो सकता है दैट इज इन्वर्शन। आपका सीक्वेंस में इन्वर्शन हो चुका है। सेकंड तरीका क्या है, तो सेकंड तरीका है बेटा दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को अभी हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल्स, यू विल गेट टू नो, बहुत आसान है। ठीक है, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन। Transversion. Okay, and the third is frame shift mutation, which occur due to either insertion or deletion. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने क्या क्या बताया बेटा, किस किस तरीके से जीन म्यूटेशन हो सकता है। इट कैन अकर बाय थ्री मेथड्स, इन्वर्शन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन, एंड द थर्ड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो कि दो तरीके से होता है। ओके, आई विल राइट इट हियर। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स बाय इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, अब इसके ऊपर हम आते हैं। तो इन्वर्शन में क्या है गाइस, सो द सीक्वेंस विल गेट इन्वर्टेड। जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हो like this part CTAA, this part has got inverted, it had become AATC। तो बेटा यहाँ से आपका सीक्वेंस जो है अगर हम तीन तीन का पेयर लेके चले, ओके, सो हियर इट वाज ACT हैज बिकम AAA ट्रिपल ए। सो बेटा इन दोनों जगहों से अलग अलग अमाइनो एसिड्स आएंगे। ठीक है, हमने तीन तीन का पहले ट्रिपलेट बनाएंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट। तो द थर्ड ट्रिपलेट हियर इट वाज ACT, बिकॉज ऑफ इन्वर्शन इट हैड बिकम AAA, so there is change in the sequence of the amino acid। नाउ यहाँ पे देखेंगे AAG था, इट हैड बिकम TCG, है ना। सो बेटा इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, द सीक्वेंस चेंजेस, बिकॉज द सीक्वेंस हैज चेंज, द एसोसिएटेड अमाइनो एसिड विल आल्सो चेंज एंड दैट विल लीड टू चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रोटीन प्रॉपर्टीज। ओके, देन कम्स द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बेटा दो तरीके का होता है। पहला है हमारा ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि बेटा एक प्यूरीन को एक प्यूरीन रिप्लेस कर देगा, प्यूरीन को प्यूरीन, या फिर एक पायरिमिडीन को पायरिमिडीन रिप्लेस करेगा, पायरिमिडीन को एक दूसरा पायरिमिडीन रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या है बेटा, प्यूरीन मतलब कि एक ही जगह पे प्यूरीन क्या होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, तो एक ही जगह पे जी आ गया या जी की जगह पे ए आ गया। पायरिमिडीन मतलब सी की जगह पे टी आ गया, टी की जगह पे सी आ गया। तो इन चार तरीकों से बेटा हमारा क्या हो सकता है, इस चार तरीके से हमारा
ट्रांजिशन हो सकता है विच इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन आ जाए एंड पायरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ जाए, एग्जाम्पल एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ गया, या गोनिन की जगह पे थाइमिन आ गया, या फिर साइटोसिन की जगह पे एडेनिन आ गया, मतलब प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन आ गया एंड पायरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ गया, सो दैट इज नोन एज ट्रांसवर्जन। इट इज नोन एज ट्रांसवर्जन। ओके, सो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं बेटा, जैसे कि ये आपका नॉर्मल डीएनए था, आपको टायरोसिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, लाइसिन, वैलिन, दीस वर द अमीनो एसिड सीक्वेंस। बेटा सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपके पास सी था, सी की जगह पे आ गया जी। नाउ सी दैट इज साइटोसिन इज अ पायरिमिडीन, इसकी जगह पे कौन आ गया जी, जी इज अ प्यूरिन, तो पायरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ रहा है, इट इज ट्रांसवर्जन। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्जन। सो बेटा यहाँ पे ट्रांसवर्जन की वजह से इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। ओके, यहाँ पे आपकी प्रोलीन की जगह पे यू गॉट आर्जिनिन। ओके, यहाँ पे आपका आर्जिनिन आ चुका है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। नाउ द थर्ड टाइप इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेटा दो तरीके से होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, इसकी वजह से बेटा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। मतलब बेटा क्या है कि अगर आपने बीच में एक अमाइनो एसिड डाल दिया, या आपने एक एक नाइट्रोजन बेस डाल दिया, या एक नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर दिया, सो इसकी वजह से बेटा जो आपका पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम है, द फ्रेम विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा यहाँ सी सी के बीच में हमने जी को इंसर्ट कर दिया, नाउ बिटवीन सी सी यू हैव इंसर्टेड जी, सो बेटा अब यहाँ से आफ्टर लाइक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से आपने इंसर्ट किया है, यहाँ से आप आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाएगा। सो देखो यहाँ पे आपको सीसीटी की जगह से प्रोलीन, लाइसिन, वैलिन मिल रहा था, नाउ व्हेन यू इंसर्टेड जी, यहाँ पे आपका आर्जिनिन आ गया, टीएए स्टॉप आ गया, जीजीटी ग्लाइसिन आ गया। डिलीशन में अगेन हमने क्या किया, ए की जगह ए को हमने डिलीट कर दिया। सो इनिशियली इट वाज सीएटी व्हिच वाज प्रोड्यूसिंग हिस्टीडीन, नाउ यहाँ से आपने ए हटा दिया, तो बेटा अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सीईटीसी विल बी द next triplet or the next codon. So CTC which will produce leucine, CTA again leucine, AGG arginine and so on. Okay, so insertion deletion से पूरा का पूरा reading frame ही बदल जाता है, so इसीलिए हम इसे frame shift mutation कहते हैं and that's it. I hope आपको chromosomal aberrations and gene mutations का जो concept है वो clear है. Now time for some quizzes. This is the first question. Which term describes a chromosomal aberration in which a portion of one chromosome is transferred to another non-homologous chromosome? जल्दी से बेटा you have 5 seconds. आप select कीजिए, ऑप्शन क्या है, is it A translocation, is it B deletion, is it C inversion or is it D duplication? So guys the answer will be translocation. आपका एक पोर्शन जो है वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो चुका है, सो दिस इज सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने सोचा कि ट्रांसलोकेशन शुड बी द राइट आंसर, दे आर करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, which type of gene mutation involves the insertion or deletion of a nucleotide leading to shift in the reading frame of the genetic code? So will it be A silent mutation, missense mutation, frame shift mutation या फिर nonsense mutation? You are inserting or deleting a particular nucleotide or a nitrogen base, so कौन सा mutation का ही type है? So 3, 2, 1 and go. So the answer should be C, that is frame shift mutation. जिन बच्चों ने सोचा कि the answer should be C, they are correct. Very good. Okay, so frame shift mutation में guys, when you insert a particular nitrogen base or a nucleotide or when you delete it, it leads to change in the reading frame, जिसकी वजह से बेटा इसे हम कहते हैं frame shift mutation. Okay, I hope it is clear to all of you. Now silent, missense and nonsense mutation बेटा when we'll do molecular biology तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. Now one jackpot question for you. These sort of questions you can expect in INJSO or IJSO. ध्यान से पढ़ते हैं. Which genetic event involves the loss of a segment of a chromosome and can lead to severe genetic disorders such as Cry-Du-Chat syndrome? तो जिस बच्चे को Cry-Du-Chat syndrome के बारे में पता है बेटा, वो बच्चे इसका बहुत अच्छे से आंसर दे लेंगे. अब आप जल्दी से सोचिए कि what should be the answer? Is it A duplication, inversion, deletion or point mutation? What should be the right answer? So guys, the answer is deletion. Cry-Du-Chat syndrome में क्या होता है बेटा? So Cry-Du-Chat syndrome का मतलब है कि जो इसमें there will be loss of the, okay, I'll show you, this is the chromosome number 5. This is the chromosome number 5. I'll just write it. Chromosome number 5. तो इस क्रोमोसोम नंबर 5 में क्या होता है बेटा, इसके जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म को हमेशा हम पी आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं.
सो पी आर्म का एक पोर्शन डिलीट हो जाता है, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम, दिस वाज द नॉर्मल होमोलोगस पेयर, ओके, दिस वाज द नॉर्मल होमोलोगस पेयर। नाउ इस होमोलोगस पेयर में व्हाट हैज हैपेंड कि वन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द पेयर हैज सफर्ड डिलीशन। और अगर इसे आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा क्या है, दिस इज टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज डिफिशियंसी। यहाँ पे क्या है, दिस इज डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी की वजह से बेटा इट लीड्स टू क्राइडो चैट सिंड्रोम। तो जो आप क्राइडो चैट सिंड्रोम, जैसे आप इस बच्ची को देख सकते हो, विच इज पिक्चर ऑफ अ पेशेंट ऑफ क्राइडो चैट सिंड्रोम। बेटा इनमें क्या होता है, इसमें बेटा इन ऐसे बच्चों का स्मॉल हेड होता है, जनरली दे हैव स्मॉल हेड, widely spaced eye, widely spaced eye, if you can see the eyes are too far apart, ठीक है। और बेटा जब ये बच्चे रोते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर इन्फेंट, तो बेटा ये क्राई लाइक अ कैट, क्राई लाइक अ कैट, दे क्राई लाइक अ कैट। जैसे एक बिल्ली का बच्चा रोता है, एक बिल्ली रोती है, वैसे ही बेटा ये बच्चे आवाज करते हैं। एंड जो जिन्हें क्राइडो चैट सिंड्रोम होता है बेटा, दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस। इन्हें जो कंजेनाइटल या कंजेंशन जो भी आप बोलते हो, उन्हें वैसे हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू know about, and that's it for today's session. Thank you very much. I hope आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली आज। प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज, बिकॉज बेटा बहुत अच्छा आप सबको परफॉर्म करना है, देश का नाम पूछा करना है। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय।